Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, today I am going to explain you new lesson from Honeydew book. Lesson number 9, The Great Stone Face, Part 1. एक महान पत्थर का चेहरा. Right? Introduction. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seems to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? दूर से देखने पर पहाड़ी की चोटी और विशाल चट्टानें विभिन्न आकृतियों को मानती है, यानी वेरियस शेप्स. वे एक जानवर या एक मानव की आकृति का संदर्श हो सकते हैं. लोग इन आकृतियों को कहानी कहते हैं. कुछ कहानियां सच भी होती हैं और कुछ नहीं भी. महान पत्थर का चेहरा मत बनो एक ऐसा तरीका है जो हमें याद दिलाता है कि भविष्यवाणी की घाटी के निवासी यानी इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली, ये क्या था? क्या ये सच हो गया? Now students, I am going to explain you lesson. One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. And what was the great stone face? Now, दोपहर का समय था, सूर्यास्त हो रहा था, यानी when the sun was going down. एक माँ और उसका छोटा सा बेटा उनके कॉटेज यानी झोपड़ी के बाहर बैठे थे. जब उन्होंने ग्रेट स्टोन फेस की डिस्कशन की, चर्चा की. यह इतना बड़ा था कि इसे देखने के लिए सक्षम होने के लिए उन्हें केवल अपनी आंखों को उठाने की आवश्यकता थी. यद्यपि ये मीलों दूर था, फिर भी इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, क्योंकि इस पर पड़ने वाली धूप ने इसकी सभी विशेषताओं को बढ़ाया था. सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स. राइट? यदि आप पूछ सकते हैं कि वास्तव में ग्रेट स्टोन फेस क्या था, द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks, which had been thrown together so that, when viewed at a proper distance, they resembled the feature of a human face. If the spectators approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only the heap of gigantic rocks piled one upon another, but seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continuously beaming over it. The great stone face कुछ विशाल चट्टानों की प्राकृतिक जमाव यानी नेचर द्वारा पहाड़ के परपेंडिकुलर किनारे पर प्रकृति द्वारा बनाई गई कला का एक टुकड़ा था. चट्टानों को इस तरह से ढेर किया गया था कि जब किसी विशेष दूरी से देखा जाता है तो यह एक मानव चेहरे की तरह लग रहा था. लेकिन अगर दर्शकों को यानी स्पेक्टेटर्स को इसे बहुत करीब से देखना है तो वह महान चेहरे की रूपरेखा खो देंगे और केवल विशाल चट्टानों के ढेर को देखेंगे. निश्चित रूप से जब मीलों दूर से देखा जाता है, जैसे ही बादल उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, ग्रेट स्टोन फेस जीवित दिखाई देता है.
कई लोगों का मानना है कि घाटी में रहने वाले लोगों का ये मानना है, ये इसीलिए भी है क्योंकि दयालु सौम्य चेहरा लगातार इस पर मुस्कुरा रहा था। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. एक माँ और उसका छोटा बेटा, जैसे कि पहले ही लेसन में बताया गया था, ग्रेट स्टोन फेस में अपनी कॉटेज के बाहर यानी झोपड़ी के बाहर बैठकर जब वो इसके लिए डिस्कशन यानी बात कर रहे थे, बेटे का नाम अर्नेस्ट था। मदर said he, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. जैसे ही ग्रेट स्टोन फेस उनके ऊपर मुस्कुराया, ऑनेस्ट ने ग्रेट स्टोन फेस की बात सुनाने के लिए अपनी माँ से अपनी इच्छा यानी विश का वर्णन किया। उसने सोचा कि इस तरह की उपस्थिति वाले व्यक्ति के पास बहुत ही सुखद आवाज़ होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें कभी ऐसा शख्स यानी पर्सन मिलेगा जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है तो वह उन्हें बहुत प्यार करेंगे। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. उसकी माँ जवाब देती हैं और उसे बताती हैं कि अगर एक पुरानी भविष्यवाणी सच होने वाली थी तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है जहाँ एक आदमी आएगा जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के रूप में दिखेगा। ये सुनकर अर्नेस्ट ने अपनी माँ से पुरानी भविष्यवाणी के बारे में सवाल किया। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born nearer here, who was destined to become the greatest and the noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. Many still had faith in his old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. तब उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसकी अपनी माँ ने उसे बताई थी जब वह खुद अर्नेस्ट से छोटी थी। भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा, एक बच्चा यहाँ पर ऐसा पैदा होगा जो अपने समय का सबसे बड़ा और कुलीन यानी ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट व्यक्ति बनने के लिए किस्मत में होगा, जिसका चेहरा मर्दानगी में ग्रेट स्टोन फेस के लिए एक सटीक समानता उसके अंदर होगी, जैसे एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस। कईयों को अभी भी इस पुरानी भविष्यवाणी पर भरोसा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात को बेकार समझ रहे थे। बेकार की बात के अलावा कुछ नहीं कहा। सभी घटनाओं में भविष्यवाणी का महान व्यक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. यह सुनकर अर्नेस्ट ने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर से ताली बजाई क्योंकि वह आशा से भरा था। उसने अपनी माँ से कहा कि वह नेक आदमी को देखने के लिए बहुत दिन जीना चाहता है। His mother was an affectionate, thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, perhaps you may. एक प्यार करने वाली और विचारशील महिला होने के नाते उनकी माँ ने उन्हें हतोत्साहित करने की इच्छा नहीं की। हतोत्साहित मीन्स डिस्करेज। भले ही उनकी उम्मीदें
थोड़ी अवास्तविक थी। अवास्तविक इट मीन्स अनरियलिस्टिक यानी फैंसीफुल। इस प्रकार उसने उत्तर दिया, जवाब दिया, शायद आप हो सकते हैं, perhaps you may. And Ernest never forget the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. उस दिन के बाद से अर्नेस्ट को हमेशा वह कहानी याद आई जो उसकी माँ ने उससे बताई थी, और जब भी वह ग्रेट स्टोन फेस को देखता हमेशा उसके बारे में सोचता। अपने बचपन के दौरान वह उस लॉग कॉटेज में रहे जहाँ उनका जन्म हुआ था। वह अपनी माँ के प्रति जिम्मेदार और वफादार था। वह अपने छोटे हाथों और प्यार भरे दिल के साथ बहुत सी चीज़ें करने में उसकी मदद करता था। वह एक बच्चे के रूप में बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन वह अपनी युवा अवस्था यानी यूथ, माइल्ड एंड क्वाइट यूथ में कम महत्वपूर्ण और शांत रहने के लिए बड़ा हो गया था। Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. Ernest की कभी कोई शिक्षक नहीं था, इसीलिए ग्रेट स्टोन फेस ने उनके जीवन में एक ऐसे रूप में काम किया। प्रत्येक दिन अपने काम को पूरा करने के बाद वह घंटों तक ग्रेट स्टोन फेस को घूरता रहता था। घूरना इट मीन्स स्टीयरिंग करना, जब तक वह यह नहीं सोचना शुरू कर देता था कि उन अपार विशेषताओं ने उसे पहचान लिया और उस पर दया करके मुस्कुरा दिया। इससे उसका हौसला बढ़ता था, यानी encouragement मिलता था। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Gathered Gold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time, he thought of his native valley and decided to go back there and his days where he had been born. लगभग इस समय पूरे घाटी में एक अफवाह इट मीन्स र्यूमर, और पूरे घाटी इट मीन्स थ्रू आउट दी वैली, ये र्यूमर फैल गई थी कि महान व्यक्ति जिसे ग्रेट स्टोन फेस के सम्मान होना था वह आखिरी बार दिखाई दिया था। ऐसा लगता है कि कई साल पहले एक युवक घाटी छोड़कर दूर के बंदरगाह पर बस गया। उसका नाम था गैदर गोल्ड। एक दुकानदार के रूप में स्थापित यानी सेटअप हो गया था और बिजनेस मैटर में तेज होने के कारण वह इतना अमीर हो गया था कि उसे अपनी दौलत गिनने में 100 साल लग जाते थे। उसने आखिर में समय के अनुसार अपने मूल घाटी इट मीन्स नेटिव वैली के बारे में सोचा और वहां वापस जाने का फैसला किया और अपने दिनों का अंत किया जहां वह पैदा हुआ था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and amazing that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." यह सुनकर अर्नेस्ट
सबसे महान और कुलीन आदमी को अपनी मूल घाटी यानी नेटिव वैली में भविष्यवाणी से देखने के विचार पर बहुत स्थानांतरित हो गया। एक दिन जब अर्नेस्ट पार पर घूर रहा था यानी स्टीयरिंग कर रहा था, कल्पना कर रहा था यानी इमेजिनिंग कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस ने उसे वापस देखा। उसने पहियों की आवाज़ सुनी क्योंकि लोगों ने ग्रेट गैदर गोल्ड के आने की अनाउंसमेंट यानी घोषणा की थी। अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 horses dashed around the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. गाड़ी के पहियों की आवाज़ की जा रही थी जिसमें गैदर गोल्ड आ रहे थे। 4 घोड़ों द्वारा खींची जा रही गाड़ी को रास्ते के मोड़ के आसपास रोक दिया गया था। एक आंशिक रूप से खुली खिड़की से एक पीले रंग की त्वचा यानी येलो स्किन टोन के साथ एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिख सकता था। The very image of a great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. लोगों ने उत्साह में चिल्लाना शुरू कर दिया कि आदमी वास्तव में यानी रियल में सही में ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है और पुरानी भविष्यवाणी वास्तव में अब सच है कि उनके पास घाटी यानी वैली में महान व्यक्ति है। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley, where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest the man will come." Ernest यह समझने में असमर्थ थे कि लोग वास्तव में कैसे विश्वास करते हैं कि आदमी ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था। वह निराश हो गया और बूढ़े व्यक्ति के झुर्रीदार यानी रिंकल्ड और अप्रिय यानी अनप्लेजेंट फेस से दूर हो गया। वह घाटी में घूर रहा था यानी गेज करना, जहां वह महान पत्थर के चेहरे की कल्पना कर सकता था जिससे उसे धैर्य रखने के लिए कहा जा सके कि भविष्यवाणी में आदमी है, द मैन विल कम।